बताए कि अगर मीटिंग करनी है तो हम एक एक डिपार्टमेंट को शुरू करते हैं। किसी मीटिंग में बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ दिखेंगे। हम नहीं आएंगे। हम क्या आपसे हर प्लेटफॉर्म पे का मजाक उड़ाया जाता है। I walk out, sir. 2 years our district is coming on the 20th number in the unit territory. Why it is so? What are the parameters? Respected chairperson, Punch, vice chairperson, और CO council, यहाँ पे बैठे सभी BDC मेंबरान, BDC मेंबरान और ऑफिसर। मेरा सवाल ये 3 कुर्सियों से है जो यहाँ सामने बैठी हैं कि कब सीखेंगे हम, कब हम किसी इंस्टीट्यूशन की इज्जत को बनाए रखेंगे। आज 2.5 साल होने को आए हैं, आज तक इस काउंसिल का कोई डेकोरम नहीं बन पाया है। सुदेश साहब आप नए आए हैं लेकिन आप ऑफिसर हैं, नए या पुराने से फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए, क्या आप कॉम्पिटेंट हैं हमारे सवालों के जवाब देने के लिए? Are you competent to answer our queries? And number 1, number 2, how many HODs departments are present here? We are not here to talk with the clerks. We are not here to talk with the JIs and all that. Those who are responsible for the department, they should be here. When you issue notice, I was the first person to object that this is not the way to call our council meeting. We are nobody's servant. We are neither servant to the government of India nor any officer in J&K or in Punch. We are elected representatives and we have our say. So you make mockery of every time you come in the meeting unprepared. Is this the way to conduct the meeting? एक तो मीटिंग साल में एक दफा आप लेते हैं और वो भी थाना पूर्ति करके आप चले जाते हैं, और उसके बाद साल के बाद जिस दिन हम मीटिंग फिक्स करते हैं, डू यू थिंक वी आर फूल हियर? Do you think those who has voted for us, they are fool? Only you people are competent and have wisdom? Is this way to conduct the meetings? We don't have any other work except to see your tantrums and moods and swings. You just tell me, Mr. CEO, are you competent to answer the queries or not? Otherwise, I am walking out. I am just walking out from this meeting. Today onwards, we will not going to attend any meeting. We will come head on and face to face on the platform where we can raise our issues. We always put your deeds under the wheel so that आप लोगों की इज्जत बची रहे, आप लोगों के काम बचे रहे। But very sorry state, very sorry, बहुत इनकम्पिटेंसी है हमारे यहाँ पे, बहुत फॉरग्रेटेडनेस है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे डीडीज फेलो ने ठीक कहा। देखिए, ये मेरी भी पहली काउंसिल की मीटिंग है। Immaterial. You are an officer. Okay, tell me one thing first. I'll start. Since last 2 years, our district is coming on the 20th number in the unit territory. Why it is so? What are the parameters? What are just a moment. Simple answer, simple question today. This is the agenda of the meeting. What are those parameters on the basis of which our performance has been judged by the UT and we are on the 20th number? Yeah, no, you can consult your officers. Leave Jal Shakti, road, black topping, leave giving tripods to the Vikrangs. Come to the substantial things. Everyone questions why our district is on the 20th number in the union territory. Are we sons of a lesser god? And this is the first meeting where Deputy Commissioner is not here. What are the parameters which is sent by the planning to the act? So we are on the 20th number. Where we are lacking, where we have to improve ourselves. This is general department, sir. This is general. This is not concerning any department. This is the general administration, Deputy Commissioner Office Punch and his team. What are those parameters on the basis of
performance, on the basis of work, we have been abject, last in the list. Leave everything. इसमें DSCO reporting I am not responsible for your DSC or your commissioner. he just coming. So, on the one hand, we are receiving awards from the Honorable LG for PMGI versus OSIS and all that. And on the other hand, we are on the 20th number. I walk out, sir. I am not coming to meeting. नहीं सर, हम आपके साथ हैं। whatever sir, this income, I will not attend this income. थोड़ा हमें सवाल इनको करने दीजिए, आप गवाह दीजिए। Let the responsible people come to answer. बिल्कुल हम आपके साथ हैं। By let the responsible people come. Otherwise, I am walking out and इसका कॉमन कर सकते हैं, इसका कॉमन कर सकते हैं। आप एक बैठा कर डिस्टर्ब आ जाते हैं तो ठीक है। आप बैठिए, तब तक बैठिए ना। फिर एक बात है कि फिर आप अकेले क्यों जाएंगे, फिर सारी जाएंगे, सभी चलेंगे, फिर सारी पूछ जाएंगे, उठिए, फिर सारी पूछ उठिए। नहीं, आपको अकेला थोड़ा जाने देंगे। मेरी बात समझना, मेरी बात सुनिए, जाएंगे तो किससे सारी जवाब पूछ जाएंगे। मांगेंगे? नहीं, किससे जवाब मांगेंगे आप? मैं वही बात कौन एक जवाब मिनट आप मांगेंगे? डिसीजन लेते हैं ना। मैं एक बात करता हूँ, 20 दिन पहले हमने ये बोला, 20 दिन पहले हमने बोला इस मीटिंग में लेट इट बी ऑलमोस्ट फाइनल रियाज साहब, एक मिनट आप बैठे, हम कहीं नहीं करते हैं। आप 2 मिनट बैठो। 2 मिनट हम कहीं नहीं करते हैं। 2 मिनट बैठो, कहीं नहीं करते हैं। आप बैठो तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। डिसीजन लेते हैं ना, जैसे चलो कौन सर। जाएगी वही करेंगे। आप दोनों में जब खड़े नहीं अगर ले लिया हमने, ले लिया हमने, हमारा डिसीजन हो गया, हमारा डिसीजन हो गया। एक मिनट बैठ के निकलते हैं ना इकट्ठे यार। एक मिनट बैठो, इकट्ठे निकलते हैं ना। आपने खान साहब आप एक मिनट आए ना। खान साहब इकट्ठे निकलेंगे ना, उनको अकेला थोड़ा जाने देंगे। थोड़ा नौकरी थोड़ी है। जैसे कौन सा हर जगह अब जिसके अंदर जितना दम होगा वो अपना काम करवाएगा, जिस तरीके से वो आप एक करवा सकता अगर डीसी साहब आ जाते हैं, यही 4 बातें काट के उनके साथ हम बाहर निकल जाते है। ठीक है, हैं। इनके सामने ये नहीं है काउंसिल, यहाँ पे डीसी पीडीसी ज्यादा है, ऑफिसर्स कम है। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, देखिए कितने ऑफिसर्स हैं, मैं कितने एडमिनिस्ट्रेटिव बैठे हैं यहाँ पे। बात करें। यही सब कुछ होता है। रियाज साहब एक मिनट, आप बैठे, आप मुझे कंट्रोल करो, मैं आपको गले मिलूं, ये देख दाख के यहाँ से चले जाएं। आप सीओ साहब आगे नए आइए, हैं, हम आपके साथ सीओ हैं। साहब की नौकरी 20 साल पहले लगी है। बिल्कुल आपका कहना सब दुरुस्त है। आप ये डिसीजन आप देखिए, डिस्टर्ब आपको क्या है, डिस्टर्ब से आप बात करें मैडम। अगर डिस्टर्ब आ जाते हैं मीटिंग चलेगी, अगर करें बात आपको क्या है। आएंगे, बताएंगे, उनके साथ ऑफिसर्स आएंगे, कंफर्टेबिलिटी होगी किसी की। हमारा थोड़ा सा हम शुक्रिया अदा करने लेंगे यहाँ पे 4 साल। हमारे यहाँ एडीटीसी साहब सरदार साहब थे। पिछली बार भी जब हमारी यहाँ कौंसिल में मीटिंग हुई, हमारी लड़ाई हुई। लड़ाई इस वजह से हुई थी कौंसिल में कि मैंने ग्राउंड वाटर वालों को ये क्वेश्चन किया था कि आपके पास कौन सा ऐसा वाला है कि आप जम्मू से बता दें कि यहाँ पानी इतनी डेप्थ पर निकलेगा। तो एडीटीसी साहब ने आगे से मुझे कहा कि आप ऑफिसरों को हरास कर रहे हैं, उसी वजह से कौंसिल में लड़ाई हुई थी। आप जिम्मेवारी को जिम्मेदार बंदा यहाँ पर नहीं होगा, आपके ऑफिसर यहाँ पर नहीं यार होंगे। कौंसिल को सस्पेंड करें, लगाना है जिसपे पीएसए लगाएं। और पैसे ये ऑफिसर कोई कक्ष नहीं मत रहे। लगाएं जिसपे पीएसए लगाना है। पीएसए के ड्रावे किसको दे रही है? कौन पैसे के कौन पीएसए के ड्रावे दे रहे हैं? जिसके जाए लगाएं। अदालत में खड़ा ना कर दूं, मेरा नाम रियाज बशीर नाज़मी है। किसको पीएसए की और ये दाड़े देते हैं? किसने कहा? इसको पहले टाइम भी तुम्हारे वाला मसला सेटल किया हमने। किसने कहा पीएसए का? जो बताया ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ, उसपे पीएसए लगवा के दिखाएंगे। उस पे हम दिखाएंगे। सुनो नहीं बात टुडे वॉक
Today, ऑफिसर गलत बोलेंगे वो सरकार का हम पैसा जाया करवाएंगे, सरकार इतना ऊपर से पैसा दे रही है 70 लाख में ताजमहल बनेंगे, तो ये 70 लाख में ताजमहल पैसा जाया कराएगा कोई मत करो जी से ये 70 लाख में ताजमहल बनेंगे, कौन करेगा तो क्या करेगा। पीएससी की जिसने बात की है ये गलत फहमी होगी किसी ऑफिसर की पीएससी लगाएंगे, पीएससी इतना आसान नहीं है। अगर हम आपके पीछे पड़ गए ना 14 डीडीसी है 10 पीडीसी है, अगर हम एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक दिन भी लगाया ना आप ऑफिसर घर अगर ना बैठे तो मुझे कुत्ता बोलना। हमसे बिल्कुल शर्म नहीं आती हमें जी 25-20वें नंबर पे हम पिछले 3 साल से, आप नए आए हो बाकी तो यही है, फर्ज रिपोर्टें बना के ऊपर भेजते हैं। पीएमआईएस के परसों मकानों के पैसों का अवार्ड लिया गया है, आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट, 80% लोगों को पैसे नहीं मिले। कौन से अवार्ड ले रहे हैं आप जाके, कौन से, ये एक्सीटों में मैंने भी बहुत काम किया है। रिक्वेस्ट है आज भी गरीब लोग मकान पे 1 लाख रुपए दे रहे हैं। सिक्योरिटी के जो लोग अंदर है उनको, हमारे कौंसिल की मीटिंग चल रही है डेकोरेम में, सारे सिक्योरिटी, यहाँ किसी को नहीं है सिक्योरिटी, मुझसे हमें सबसे ज्यादा है, हमारे पीएसओ बाहर है, काइंडली सारे जो सिक्योरिटी है आप भी प्लीज काइंडली, पीएसओ नहीं होने चाहिए ना अंदर, मीटिंग में नहीं होते हैं हमारे भी बाहर, सबको बुला लेंगे अंदर तो फिर सारे पीएसओ से बैठते हैं। ऑफिसर को खतरा है जानवाज वो बोल सकता है। जानवाज सिर्फ डीडीसी ऑफिसर्स रहेंगे, बाकी अगर कोई और लोग भी है यहाँ पे प्लीज डेकोरम मेंटेन करें, आप बाहर से कर लें जो करना है। कौंसिल के मेंबर्स और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके अलावा कोई मीटिंग में लोग हैं तो वो अच्छी बात नहीं, ये हमारे इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं, इसलिए और कौंसिल को देखना चाहिए कि कौन आए कौन नहीं आए, देखना चाहिए कौन से लोग बैठे कौन से नहीं बैठे। सीआईडी वाले बैठे हो 10 बैठे हो ठीक है हम बात करते हैं, मेरी सारे ऑफिसर ही आप चेक कर लीजिए। बात ही नहीं है कोई। सब डिपार्टमेंट के इंट्रोडक्शन तो आपने ले ली, पहले हमने इंट्रोडक्शन सबकी कर वो पैरामीटर्स कौन से, छोड़िए ये 70 लाख के कामों को, छोड़ दीजिए 10 करोड़ के कामों को, सभी बीडीसी डीडीसी के। आप सिर्फ ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट का टोटल बजट पिछले 2 साल में कितना आया है, कितना कंज्यूम किया है, और 20वें नंबर पे कंज्यूम करने के बाद हम 20वें नंबर पे क्यों हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी कौंसिल की खिल्ली उड़ाई जाती है कि आप लोग इनकम्पिटेंट हो। 20वें नंबर पे, 19वें पे भी नहीं आए हम लोग 1 साल में इंप्रूव करके। कौन एक्सेल शीटें बना के भेजता है यहां से, किन पैरामीटर्स में हम 20वें नंबर पे आते हैं। बाकी जो डिप्टी कमिश्नर वहां पे हैं या बाकी सीओ वहां पे हैं, उनके सुखाव के पर लगे हुए हैं। बाकी जेईए एक्सीएन डी बाकी डिपार्टमेंट्स के जो जम्मू के डोडा भद्रवाह के जो डिस्ट्रिक्ट हमसे ऊपर है, माइनस स्मार्ट सिटी, आप मुझे ये बताओ कि किस तरीके से हम 20वें नंबर पे हैं। ये सवाल आप पे नहीं है, सवाल हम पे उठता है। और हम सोते रहते हैं, इतने रिजल्ट देने के बाद भी हम सोते रहते हैं पूरा साल। एक टेबल से दूसरे टेबल पे शटल, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। हाँ जी साहब,